حکومت آج لائے گی مہنگائی کا توڑ، عوام کے لیے ریلیف پیکج کا شور۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے 15 سے 18 ارب کا ریلیف پیکج تیار۔ گھی، دالیں، چینی، چاول اور آٹا 10 سے 25% سستا ملے گا۔ سستے تنور کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی۔ وفاقی کابینہ ریلیف پیکج کی منظوری آج دے گی۔ وفاقی کابینہ حج پالیسی 2020 اور چھٹی مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کی منظوری بھی آج دے گی۔ نون لیگ نے حکومتی سبسڈی پیکج کو دن دہاڑے ڈکیتی قرار دے دیا۔ ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں 15 سے 18 ارب کا پیکج قوم پر ظلم ہے۔ سبسڈی کا اعلان کر کے عمران مافیا نے اپنی چوری کا پول کھول دیا۔ سینیٹر سراج الحق کی بھی حکومت پر تنقید، کہا مافیاز نے اس حکومت پر سرمایہ کاری کی تھی جو سود سمیت واپس لے رہے ہیں۔ پیاروں کو سزا دیے بغیر احتساب نہیں ہو سکتا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مؤخر۔ چیئرمین نیپرا کی زیر صدارت ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر سماعت۔ سی پی پی اے نے بجلی قیمتوں میں اضافے کو مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ سی پی پی اے حکام کا کہنا ہے حکومت نے قیمتوں میں اضافہ کرنے سے روک دیا ہے۔ حمزہ شہباز کی رہائی میں حائل رکاوٹ ختم نہ ہو سکی۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ حمزہ شہباز کے وکیل کو متعلقہ عدالتی فیصلوں کی نقول جمع کرانے کی ہدایت۔ وکیل نے کہا کہ حمزہ شہباز پر اختیارات کے غلط استعمال کا کوئی الزام نہیں۔ نیب نے جو ریکارڈ مانگا وہ فراہم کیا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے آپریشن دوبارہ شروع۔ گیلانی ریلوے اسٹیشن کے اطراف کارروائی کے دوران مکین مشتعل ہو گئے۔ خواتین اور دیگر افراد کا پولیس اور ہیوی مشینری پر پتھراؤ، عملے کو عمارت میں گھسنے سے روک دیا۔ خواتین پولیس اہلکاروں نے مشتعل خواتین کو باہر نکالا۔ ایم کیو ایم کا بے گھر ہونے والوں کو متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کنور نوید جمیل کا کہنا ہے بڑے بڑے پلازے بن گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیا اہلکار پیسے لے کر سب کراتے رہے۔ مزید بولے کہ ایم کیو ایم پر کہیں بھی قبضہ کرانے کا کوئی کیس نہیں۔ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ شبر زیدی نے صحت کی خرابی کے باعث عہدہ چھوڑا۔ فیصلے سے اعلیٰ حکام کو آگاہ بھی کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز ہی نیا چیئرمین ایف بی آر تعینات کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ شبر زیدی صرف 6 ماہ کے لیے آئے تھے۔ میگا منی لانڈرنگ اور پارک لین ریفرنس کی سماعت۔ آصف زرداری اور دیگر ملزمان کے خلاف فرد جرم کی کارروائی 3 مارچ تک مؤخر۔ سابق صدر آصف زرداری کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ انور مجید کو بھی کراچی سے اسلام آباد منتقل نہ کیا جا سکا۔ پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کیس، خواجہ برادران کی جوڈیشل ریمانڈ میں 24 فروری تک توسیع۔ احتساب عدالت نے وعدہ معاف گواہ کیسر امین بٹ کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ 24 فروری کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ قانونی محاذ پر حکومت کو شکست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن کو تحلیل کرنے کا صدارتی آرڈیننس کالعدم قرار دے دیا۔ پی ایم ڈی سی کے ملازمین بحال۔ عدالت کا پاکستان میڈیکل کمیشن کی تشکیل غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ختم کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے عمل عمر ہلاکت از خود نوٹس نمٹا دیا۔ سندھ حکومت کے عمل کو والدین کو 10 لاکھ روپے امداد دینے کی ہدایت۔ دوران سماعت عمل کی والدہ آبدیدہ ہو گئیں۔ عدالت کا ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے اور انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پولیس کو علم ہی نہیں کہاں گولی چلانی ہے کہاں نہیں۔
सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डीजी हज राव शकील को नौकरी से बर्खास्त करने की सजा को जबरी रिटायरमेंट में तब्दील कर दिया। अदालत ने बरियत के खिलाफ हुकूमती अपील निपटा दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जो इल्जामात लगे वो कमीशन में साबित हुए। नौकरी पर बहाली की कोई गुंजाइश नहीं, जबरी रिटायरमेंट पर सारी मराआत मिलेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीन से पाकिस्तानियों को ना निकालने के फैसले पर नजरसानी की हिदायत, सोच विचार के लिए 2 हफ्तों का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस आतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये कोई वजाहत नहीं कि पाकिस्तानी शहरियों को निकाला तो किसी मुल्क से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अगर शहरियों को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। वजारत खारजा के मुताबिक वुहान में 1000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सना जावेद। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। अहम खबर आपको दें, चेयरमैन एफपीआर शबर जैदी ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। शबर जैदी ने फैसले से आला हुकाम को आगाह कर दिया। शबर जैदी खराबी सेहत के बायस ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए। शबर जैदी 31 जनवरी को दूसरी बार रुखसत पर चले गए थे। डॉक्टर्स ने शबर जैदी को ज़हनी तनाव से बचने के लिए मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। शबर जैदी को मई 2019 में चेयरमैन एफपीआर तैनात किया गया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान शबर जैदी के इस्तीफे का हतमी फैसला करेंगे। चेयरमैन एफपीआर के मुताबिक बीमारी के बायस काम नहीं कर सकता। बीमारी के बायस काम जारी नहीं रख सकता। डॉक्टर्स ने भी आराम का मशवरा दिया है। चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। शबर जैदी ने 2 हफ्ते की छुट्टियों के बाद 21 जनवरी को दोबारा दफ्तर संभाला था, मगर उनकी तबीयत ना संभल पाई और वो फिर गैर मुइना मुद्दत के लिए रुखसत पर चले गए। माजी में सिंध की निगरान हुकूमत के दौरान वज़ीर खजाना के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले शबर जैदी पेशे के एतबार से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। शबर जैदी मुल्क में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान और साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के सदर रह चुके हैं। शबर जैदी को मई 2019 में चेयरमैन एफबीआर तैनात किया गया था। बड़े टैक्स अहदाफ और ब्यूरोक्रेसी की जानिब से रुकावटों के बायस दबाव का सामना करना पड़ा। टैक्स इस्लाहात का अमल भी ताखीर का शिकार हुआ। अगरचे टैक्स रेवेन्यू में 16% इजाफा और टैक्स गोशवारों की तादाद रिकॉर्ड 27 लाख तक पहुँच गई। शबर जैदी ने इस्तीफा दे दिया। जल्द हफीज शेख भी भाग जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहते हैं कि मुल्क में चल चलाओ का निज़ाम चल रहा है। कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं जो मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान महसूस करे। हुकूमत को बस चले तो ये रेलवे और PIA को भी फरोख्त कर दे। मजीद कहा, एक वक्त आएगा ये लोग कायदे आज़म का मज़ार फरोख्त कर देंगे। सदर और वज़ीर आज़म के लिए चंदा इकट्ठा करना होगा ताकि उनका गुजारा हो सके। है कि हमने कौमी इदारों को फ़रोग़ करना है। स्टील मिल को हमने फ़रोग़ करना है। जितने सरकार के साथ होटल्स हैं उनको फ़रोग़ करना है। और अगर इनका बस चले तो ये रेलवे को भी फ़रोग़ करना चाहती है, और इनका बस चले तो ये PIA को भी फ़रोग़ करना चाहती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बाबा, सरकारी अमलाक को फ़रोग़ करना कोई तरक्की नहीं है। इस तरह तो एक दिन आएगा कि आप इन कर्ज़ों में कादी आज़म का मज़ार भी फरोख्त करेंगे, फिर हम क्या करेंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल दे दी गई। यूटिलिटी स्टोर को 15 अरब रुपए फराहमी, 50 लाख अफराद को राशन कार्ड फराहमी का मंसूबा। राशन कार्ड के जरिए यूटिलिटी स्टोर पर 25% डिस्काउंट देने की तजवीज़ है। ज़रा के मुताबिक बिस्प के अलावा भी मुतवस्सत तबके को कार्ड्स जारी होंगे। 50,000 दुकानें खोले जाने की हिकमत अमली तैयार की गई है। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत दुकानों के लिए फंड्स नेशनल बैंक फराहम करेगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन दुकानों में 5 बुनियादी अशिया सस्ते दामों फराहम करेगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा इकराम होती से। इकराम होती, आगाह कीजिएगा, 50,000 दुकानें खोलने की हिकमत अमली तैयार की गई है, इस पर अमल दरामद कब से शुरू होगा? जी, जैसे ही ये काबीना मंजूर करती है इस प्लान को, इस प्लान में तब्दीली भी हो सकती है, क्योंकि 2.5 करोड़ लोगों को ये टारगेट कर रहा है। अगर 50 लाख लोगों के पास ये कार्ड्स हों तो 5 के साथ एवरेज एक फैमिली करें तो ये 2.5 करोड़ लोग बनते हैं, जो कि 2.5 करोड़ लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ज्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लेकिन औसतन इस जो डिस्काउंट है वो 5 चीजों पे ही मिलेगा, ज्यादा बड़ी चीजों पर, जिसमें दालें, उसके अलावा आटा, ऑयल, चीनी
اور چاول یہ چیزیں شامل ہیں. اس ڈسکاؤنٹ کی بنیاد پر کچھ تو ریلیف ملے گا، لیکن یہ اتنا بڑا ریلیف نہیں ہے جتنا بڑا ریلیف بے نظیر انکم سپورٹ کا ہے. لیکن پھر بھی یہ چونکہ سب سے زیادہ غریب طبقے کو ٹارگٹ کر رہا ہے، لہذا ایک ریلیف دینے کا پروگرام جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا. اچھا اکرام ہو تو یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے جو تمام تر باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ اس طرح سے صحیح شفاف طریقے سے لگائے نہیں جا سکیں گے، تو کیا آج کی جو کابینہ اجلاس ہے کیا اس پر بھی کوئی بات چیت ہوگی، کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے گا؟ جی، چونکہ یہ نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے یہ رقم فراہم کرے گا، تو لہٰذا یہ رقم محفوظ ہاتھوں میں جائے گی. در حقیقت اس کی جو ڈسٹریبیوشن میکنزم ہے وہ تھرو کارڈ ہے. کارڈ میں ایک حد رکھی گئی ہے کہ اس سے زیادہ تو آپ ڈرا ہی نہیں کر سکتے. اب کارڈ میں رقم ڈالنے والے جو بینکس ہیں ان کو سپروائز کرے گا نیشنل بینک، اور نیشنل بینک کو اسٹیٹ بینک سپروائز کرے گا. لہٰذا ایک چین آف سپرویژن ہے، اور اس میں یہ کم امکان ہے کہ اس میں سے چوری ہو یا اس میں چین آف سپرویژن کے ذریعے سے یہ تمام تر طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. اکرام ہوتی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو ہے. اپوزیشن ارکان کی حکومتی کارکردگی پر کڑی تنقید. حکومتی ارکان مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پر امید ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس سے رپورٹ کریں گی مریم ملک. حکومت کو مہنگائی کا ادراک، عوام کو سستی اشیاء اور روزگار کی فراہمی کرنے کا فیصلہ کر لیا. ریٹیل سٹورز کھولنے اور قرض فراہم کرنے کا منصوبہ بنا لیا. کیا ان حکومتی اقدامات سے بڑھتی مہنگائی کا جن قابو میں آ جائے گا؟ اسی پر بات کرتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے. پہلے تو یہ جو ذمہ داران ہیں، اتنی مہنگائی جو قوم کے کو بالکل انہوں نے کچل دیا ہے، پہلے تو اس کا بتائیں، پھر ہم کہیں گے کہ آپ سیریس ہیں. 157 ارب روپے کا آپ لاس کر کے گئے ہیں SNGPL اور SSGPL کے اندر، اور آپ مجھے بتائیں وہ کس طرح ریکور ہو سکتا تھا جب آپ اتنے بڑے بڑے لاسز کر کے جائیں گے. کرنے کے لیے اہلیت چاہیے ہوتی ہے، نالج چاہیے ہوتی ہے، اور ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ کرنے کا جذبہ چاہیے ہوتا ہے جو کہ مفقود ہے ہی نہیں. مہنگائی کنٹرول بھی ہوگی لیکن تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، کیونکہ جو انہوں نے میجر ڈیسیجنز لیے ہیں یہ بہرحال کسی نہ کسی نے لینے تھے. وہ شخص لیتا جو نڈر لیڈر ہو، کیونکہ نڈر لیڈر جو ہے وہ قوم کی آگے کا سوچتا ہے. ابھی بھی وقت ہے، اپنے دائیں بائیں ذرا نظر دوڑانی چاہیے کہ کن لوگوں کو انہوں نے بھرتی کیا ہوا ہے، اور اجلاس پہ اجلاس کر کے جو عوام کا پیسہ جو ہے اجلاسوں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے. بے شک انہوں نے چائے پانی بسکٹ بند کر دیے ہیں، لیکن خرچ ہو رہے ہیں پیسے. وقتی طور پہ کہیں تو تھوڑا بہت ریلیف ہوگا، لیکن مجموعی طور پہ اوورآل جو ہے اجتماعیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی خاطر خواہ نتائج نظر نہیں آئیں گے. حکومتی ارکان مہنگائی پر قابو پانے کے لیے پرعزم، تو اپوزیشن ارکان حکومتی معاشی ٹیم کو نالائی قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے عوام کی زندگی عذاب میں مبتلا ہے. کیمرامین منشارنگ علی کے ساتھ مریم ملک، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. وزیر اعظم عمران خان سے میکنزی کے گلوبل مینیجنگ ڈائریکٹر کیون سنیدر کی ملاقات. گفتگو میں کہا کہ سابق حکمرانوں نے اپنے مفاد کے لیے کرپشن اور اداروں کو کمزور کیا. سول اداروں کے کمزور ہونے کی وجہ سے کرپشن اور عوام کی تکالیف میں اضافہ ہوا. توانائی کے شعبے میں سابق حکمرانوں کی نااہلی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. کاروباری طبقے کو ہر ممکن سہولت دینے کا عزم کر رکھا ہے. عوام پر پڑنے والے بوجھ کو کم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. حکومت کی اولین کوشش کاروبار میں آسانی پیدا کرنا ہے. ہم ملک میں سیاحت کا فروغ چاہتے ہیں. توانائی کے شعبے میں سابق حکمرانوں کی نااہلی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، ایسا کہنا تھا وزیر اعظم کا. چودھری سرور اتحادی جماعتوں کے مخالف نہیں، ان کے لیے سہولت کار نکلے. مسلم لیگ کاف کے ساتھ معاملات طے کروانے میں گورنر پنجاب نے مرکزی کردار ادا کیا. لاہور سے شاہد چودھری رپورٹ کریں گے. پنجاب میں اتحادیوں اور حکومت کو قریب لانے میں پل کا کردار کس نے ادا کیا؟ حکومت کے اتحادی جسے مخالف سمجھتے رہے وہی ان کے لیے سہولت کار نکلا. حکومت اور مسلم لیگ کاف میں صلح کی اصل کہانی سامنے آ گئی. معاملہ طے کرانے میں مرکزی کردار چودھری محمد سرور نے ادا کیا. ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر پرویز خٹک اور اسد عمر بھی گورنر پنجاب کی تجویز پر مذاکرات میں شریک ہوئے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے مشورے پر پرویز خٹک نے مسلم لیگ کاف سے رابطہ کیا. پارٹی قیادت کو کاف لیگ کے ساتھ معاہدے اور وعدوں پر عمل کا مشورہ بھی گورنر پنجاب نے دیا. ذرائع کے مطابق چودھری محمد سرور کی تجویز پر ہی مذکورہ اضلاع میں مسلم لیگ کاف کو پی ٹی آئی کے برابر ترقیاتی فنڈز ملیں گے. شاہد چودھری، 92 نیوز، لاہور.
पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की रिहाई में हाइल रुकावट खत्म न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इसी पर देखिए शकील सईद की ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस हमजा शहबाज की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। हमजा शहबाज के वकील सलमान असलम भट्ट ने दलाल में कहा कि चेयरमैन नैब के पास मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन का इख्तियार नहीं। वकील ने निशानदही की कि इनकम टैक्स रिटर्न में सब कुछ जाहिर कर दिया है। इनकम टैक्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला मौजूद है। लार्जर बेंच के फैसले के तनाजुर में हमजा शहबाज पर इनका इत्तलाक नहीं होता। दो रुकनी बेंच ने हमजा के वकील को बावर कराया कि अगर उनका मौक़िफ़ मान लिया जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून ही खत्म हो जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने बेनामी और दीगर कंपनियों की 1.5 अरब से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया। सलमान शहबाज के अकाउंट में 1.5 अरब से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस हुई। 55 करोड़ राबिया इमरान के अकाउंट में आए और ट्रांसफर हुआ। ये पैसे गिफ्ट की मद में हमजा शहबाज के अकाउंट में भिजवाए गए। 2000 में इस फैमिली के असासाजात 6 करोड़, 2003 में तकरीबन 19 करोड़ हो गए। 2009 में हमजा शहबाज के 68 करोड़ तक असासे पहुंच गए। 2018 में हमजा शहबाज के असासे बढ़कर 470 मिलियन से भी ज्यादा हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स में जमानत मंजूर की थी। कैमरामैन अतीक और साथी रिपोर्टर सुहेब शाहिद के साथ शकील सईद, 92 न्यूज लाहौर। सुसेक्स यूनिवर्सिटी ब्राइटन में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सरदार मसूद खान ने तलबा को मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय इंसानी हकूक़ की पामाली के बारे में आगाह किया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में भारत का मकरूह चेहरा दिखाने के लिए ससेक्स यूनिवर्सिटी ब्रास्टन की पॉलिटिक्स सोसाइटी ने आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद अहमद खान को यूनिवर्सिटी कैंपस में मदऊ किया। सरदार मसूद अहमद खान ने अपने खिताब के दौरान हाज़रीन को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज मुसलमानों की जिंदगियों से खून की होली खेल रही है। I know you all talk about movers and shakers of the world, of the international community, and you know that the globe is shrinking, and that's why it's called a global village. Our international society is called the global village. But I think the real movers and shakers of the world are the student community. Most of you probably do not realize that today. तलबा ने सदर के खिताब के बाद उनसे इंतहाई हसास मामलात पर सवालात भी किए, जिनके जवाबात उन्होंने बड़ी महारत से दिए। तकरीब के दौरान सदर सरदार मसूद खान तलबा में घुल मिल गए और कश्मीर समेत आलमी मंजरनामे के हवाले से तलबा के सवालात के जवाब दिए। The healthcare provision in Azad Kashmir in general and within the crisis in the occupied Kashmir. Thank you. The healthcare system in Azad Kashmir has been improved considerably, but we still have challenges, particularly people living in the remote, inaccessible areas. It is difficult to reach them, and we're trying to ensure universal access to health. तलबा सोसाइटी के अहदेदारों ने भी तकरीब से खिताब किया और कश्मीर में जारी सूरत हाल से हाज़रीन को आगाह किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में रमला रवाल पर यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी लॉर्ड नज़ीर अहमद थे। तकरीब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी शरीक हुई। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय जबरो सितम और बर्बरियत की खौफनाक दास्तान जहां हिटलर की याद ताज़ा कर रही है, वहीं मकबूजा वादी में मजलूम और बहादुर कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी, माओ, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों और निहत्ते नौजवानों का सर पे कफन बांधकर इंडियन फोर्सेज के आगे डट जाना और उनका जज्बा आज़ादी अपनी मिसाल आप है। दुनिया भर में बसने वाली पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी अपने उन्हीं मजलूम बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर
कश्मीर बनाते हैं। इसी सिलसिले में स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी नदाए कश्मीर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जो यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुनक्किद चौथी बड़ी तकरीब थी, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी शरीक थी। इंग्लैंड से आए हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर लॉर्ड नजीर अहमद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जबकि कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी समेत कम्युनिटी की अहम सियासी और समाजी शख्सियात, खवातीन और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमात के नुमाइंदे भी तकरीब में शरीक थे। लॉर्ड नजीर का कहना था कि 6 माह से जारी लॉकडाउन ने कश्मीरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। 15,000 नौजवान मिसिंग हैं। ऐसे हालात में जरूरी है कि आजाद कश्मीर के हर नौजवान को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए। कश्मीर, पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की लीडरशिप को बुलाकर और ओवरसीज पाकिस्तानियों के नुमाइंदों को बिठाकर डायलॉग करने चाहिए, ताकि मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी की जा सके। आज़ाद कश्मीर के हर एक नौजवान को मिलिट्री ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जिस तरीके से 27 ममालिक के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग और सर्विस, मिलिट्री सर्विस जो है वो हर 16-18 साल के बच्चे को दी जाती है। इसराइल, रशिया, चाइना, बहुत सारे और भी ममालिक हैं। इस तरह आज़ाद कश्मीर के बच्चों को भी इजाज़त होनी चाहिए और कंपल्सरी होनी चाहिए। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि कश्मीर की पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को बुला के एक डायलॉग करना चाहिए, ओवरसीज़ कश्मीरीज़ को भी शामिल करना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है, आज 6 महीने हो गए हैं वहाँ पे लॉकडाउन है, आज 6 महीने से वहाँ पे लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। 15,000 नौजवान जो हैं वो मिसिंग हैं। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी का कहना था कि हम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी मिलकर कश्मीरियों के लिए लड़ते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती। हम कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान बार्सिलोना में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं कश्मीर के ऊपर, जिसमें यहाँ के यंगस्टर्स को इंक्लूड करके हम ये बैटल ऑफ लेटर्स और बैटल ऑफ आइडियाज़ वो लड़ेंगे कश्मीर के ऊपर, कैटलान और स्पेनिश लैंग्वेजेस में। हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे। बार्सिलोना एज ए सेंटर ऑफ यूरोप और द कौंसलेट एंड द कम्युनिटी विल कीप ऑन फाइटिंग फॉर कश्मीर टिल कश्मीर इज़ लिबरेटेड। तकरीब से राजा मुख्तार सोनी, मोहम्मद इकबाल चौधरी और मलक शरीफ ने भी खिताब किया। आखिर में कश्मीर की आज़ादी, पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेकाम और सरबलंदी के लिए दुआएं की गईं। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। लंदन के नवाही इलाका बाई वैकम में पाकिस्तानी और कश्मीरी फोरम साउथ ऑफ इंग्लैंड की जानिब से यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी लॉर्ड कुर्बान हुसैन थे। तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस की सदारत OPWC के मरकजी सदर हाजी आबिद हुसैन ने की। लॉर्ड कुर्बान हुसैन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि मोदी सरकार ने 6 माह के कर्फ्यू से कश्मीरियों की न सिर्फ नस्ल कुशी की बल्कि इंसानी हुकूक की पामालियों की नई तारीख रकम की। मुकर्ररीन ने मजीद कहा कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती अब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज और कश्मीरी इस काफिले का हिस्सा हैं और आज बरतानिया भर के शहरों और कस्बों में भी कश्मीर इशू उजागर हो चुका है। कॉन्फ्रेंस में कम्युनिटी रहनुमाओं ने मुश्तरका फैसला किया कि आइंदा न सिर्फ बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट्स बल्कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबरान को भी कश्मीर इशू को उजागर करने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और इंडियन फौज ने बड़ी बेरहमी से कर्फ्यू के दौरान मजालिम रवा रखे और कश्मीरी अपने घरों में महसूर होकर रह गए और रोजमर्रा की जिंदगी की बुनियादी जरूरियाती अशिया से महरूम हैं। कश्मीरी के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए बरतानिया में हमें काम करने के अब नए नए तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे ताकि लॉबिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके लिए मैं चाहूँगा कि यहाँ मेंबरान पार्लियामेंट को लिखने के लिए तो हम बार बार लोगों से कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ हमें और भी करनी चाहिए, जहाँ 650 मेंबरान पार्लियामेंट हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहाँ 800 के करीब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर भी हैं। हमारी कम्युनिटी को चाहिए कि उन लोगों को भी खतूत लिखें और वहाँ की सिचुएशन जो है वो उनको समझाएं और उनसे कहें कि वो भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर ऐसी बहस करें जिस तरह के हाउस ऑफ कॉमन्स में होती है। सब ने मिल के तय किया है कि हम अभी सिर्फ MPs को नहीं बल्कि हम लॉर्ड्स को भी लिखेंगे, उस पर भी लॉबी करेंगे, क्योंकि 6 महीने से कश्मीर में जितना जुल्म हो रहा है, वहाँ कोई मेडिसिन नहीं है, फूड नहीं है, उस पर हम जितना भी जोर ला सकें हमें जोर लाना चाहिए। 6 माह से कर्फ्यू का मामला चल रहा है और अभी तक किसी किस्म की भी
कोई भी मोदी सरकार और उन्होंने किसी तरह की चेंज उसमें नहीं लाई। हर प्लेटफॉर्म पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले और पूरी दुनिया भर में, खाली पाकिस्तान में 5 फरवरी नहीं मनाया गया बल्कि पूरी दुनिया भर में इस इशू को हाईलाइट किया गया है। और बरतानिया में हम इस ऑर्गेनाइजेशन और काउंसिल फोरम के प्लेटफॉर्म से इस पे को लेके साथ चल रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में मेयर ऑफ चश्म कैसर चौधरी, मेयर ऑफ लोटन ताहिर मलिक, डिप्टी लॉर्ड मेयर ऑफ ऑक्सफोर्ड अल्ताफ खान, डिप्टी मेयर तुफैल हुसैन, सदर PPP ग्रेटर लंदन मियां सलीम, काउंसलर माजिद हुसैन, काउंसलर खलील अहमद, प्रोफेसर नज़ीर शाल समेत मुतअद्दिद सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के 33वें आम इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज सामने आ गए। बाएं बाजू की जमात सिन्न फेन ने बड़ी कामयाबी हासिल करके मुल्क की सियासत का रुख बदल दिया है। मजीद अखबार जानते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। आयरलैंड की अपोजिशन जमात सिन्न फेन ने अब तक के नताइज के मुताबिक रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की है और इसके तकरीबन तमाम उम्मीदवार कामयाब होकर पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, जिससे मुल्क की सियासत में एक हिजान पैदा हो गया है। सिन्न फेन के हिस्से में मजमूई वोटों के 24.5% वोट आए। अपोजिशन जमात फियाना फॉयल 22.2% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि हुक्मरान जमात फिनी गेल के हिस्से में 20.9% वोट आए हैं। इन इंतखाबात में बाएं बाजू की जमात सिन्न फेन ने दूसरी बड़ी जमातों की निस्बत कम उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसके बायस सिन्न फेन का पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करना बहुत मुश्किल है। Really impressive thing is that in Britain about a third of the country elects the government. The 2/3 of people might as well not bother going out. In Ireland, if you vote 80% of the time, your vote will help to elect someone and get somebody over the line. We'll be back tomorrow at 10 o'clock to hopefully for Sinn Féin get the last 82 votes I think, and secure election. Election day is always a day that has an awful lot of emotion in it. It does look like there's pretty significant change of us in Irish politics. Sinn Féin have done very well. My own party, though, has done well in the context of us trying to win our third term in office. So we're around in the early days of all the votes being counted at the moment, and I'd say it'll become clearer tomorrow what the Irish people are voting for. Where we have just elected Eamon Ryan from the Green Party, and then secondly, I think there will be Chris Andrews from Sinn Féin elected. Thirdly will be Owen Murphy from my own party, and fourthly looks to be Jim O'Callaghan from Fianna Fáil. हुकूमती जमात फिनी गेल और अपोजिशन जमात फियाना फॉयल दोनों अपनी इंतखाबी मुहिम में अपने वोटर से वादा करके मैदान में उतरे थे कि किसी सूरत सिन्न फेन के साथ इल्हाक नहीं करेंगे। इसलिए मौजूदा सूरत हाल दिलचस्प हो चुकी है कि किसी जमात के पास हुकूमत बनाने के लिए 80 अरकान नहीं। अगले कुछ दिन आयरिश सियासत के लिए बहुत अहम समझे जा रहे हैं, जिसमें कुछ सरप्राइज होने की उम्मीद की जा रही है। फैसल मिर्जा, डबलिन, आयरलैंड। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम मापिम के सदर हाजी मोहम्मद आज़मी अब्दुल हमीद की खुसूसी दावत पर 5 रोज़ा दौरे पर मलेशिया पहुँच गए। कुआलालंपुर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने उनका इस्तकबाल किया। तफसीलात जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान 5 रोज़ा इंतहाई अहम दौरे पर मलेशिया पहुंच गए। कुआलालंपुर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच, डिप्टी हाई कमिश्नर मियां आतिफ शरीफ और मापिम के ओहदेदारान ने उनका इस्तकबाल किया। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान की वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद से मुलाकात भी मुतवक्की है, जहाँ वो वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। सरदार मसूद अहमद खान मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातू सैफुद्दीन अब्दुल्ला, वज़ीर सेहत दातू डॉक्टर डी जुल्फ़िकार, स्पीकर मलेशियन पार्लियामेंट मोहम्मद आरिफ मोहम्मद यूसुफ, मापिम के सदर मोहम्मद आज़मी अब्दुल हमीद मलेशिया में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नुमाइंदगान से मुलाकातें भी करेंगे।
पाकिस्तानी हाई कमीशन कुआलालंपुर, मापेम और यूनिवर्सिटी कुआलालंपुर मलेशिया के इश्तराक से मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुनक्कद किए जाने वाले सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डिग्निटी फोरम के पैनल में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होंगे। पाकिस्तान रवानगी से कबल पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच उनके एजाज़ में इस्तकबालिया भी देंगी। सदर आज़ाद जम्मू व कश्मीर सरदार मसूद खान आज 5 रोज़ा दौरा पर मलेशिया पहुँच गए। उम्मीद की जाती है कि वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद से मुलाकात में वो कश्मीर पर इज़हार यकजहती के लिए उनका शुक्रिया अदा करेंगे। तजिया निगार और नाकदीन वज़ीर आज़म इमरान खान के मलेशिया के दौरा के बाद उनके इस दौरा को कश्मीर काज के लिए इंतहाई अहमियत की निगाह से देख रहे हैं। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी खवातीन की तंजीम की जानिब से रंगारंग सकाफती मेला सजाया गया, जिसमें मशरकी मलबूसात के अलावा बच्चों की जानिब से रिसाइकल्ड अशिया पर भी सबकी तवज्जो रही। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी शहर अलखुबर में खवातीन की तंजीम एलीट क्लब की जानिब से सकाफती मेला सजाया गया, जिसमें पाकिस्तानी खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मशरकी मलबूसात के अलावा कॉस्मेटिक्स, मेहंदी, ज्वेलरी और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। पर खवातीन ने पाकिस्तानी कल्चर को उजागर करने के लिए दीद अज़ेब मशरकी मलबूसात पहनकर उनकी नुमाइश की, जिस पर 3 मॉडल्स को इनामात से भी नवाजा गया। क्लब के सदर जवेरी असद का कहना था कि इनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो दयार गैर में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए सकाफती और एजुकेशनल इवेंट करवाएं, जिनसे लोगों को तफरीह जैसा माहौल मुयस्सर आता हो। ख़वातीन शुरका ने मेले के इनेकाद को खूब सराहा। उनका कहना था कि ऐसे प्रोग्रामों से यकीनी तौर पर तफरीह के माहौल के अलावा मिल बैठने का मौका भी मुयस्सर आता है। बहुत ज़बरदस्त गेट टुगेदर हुई है एंड आई होप इस तरीके की चीज़ें कंटिन्यू रहें और आगे और सब लोगों को मौका मिले। इट वाज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। इवेंट में बच्चों की जानिब से रिसाइकलिंग अशिया भी रखी गई थी, जिन पर बच्चों को भी इनामात से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में मौसीकी की धुनें बिखर गईं। गायकी के सुरों में ताल से ताल मिलाकर गुलकारों ने महफिल लूट ली। सुरों भरी इस म्यूजिकल नाइट का हवाल जानते हैं शाइस्ता शेख की इस रिपोर्ट में। मौसीकी भरी रात जहां नामवर गुलकारों की आवाज का जादू, वहीं नन्हे कलाकारों ने भी अपने बड़े फन से हाजरीन को गर्विदा कर दिया। ये टैलेंट देखने को मिला द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद सरगोदा रोड कैंपस में, जहां हर तरफ मौसीकी के रंग बिखर गए। मारूफ गुलकारा निर्मल राय और आसिम ने स्टेज पर शानदार और जानदार परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल मोह लिए। रही सही कसर डीजे बीट ने पूरी कर दी। म्यूजिकल नाइट में नन्हे मौसीकार ने 3 ताल और 6 बीट मुतारिफ करवाकर सबको हैरान कर दिया। तालबाद ने अपनी सखियों संग म्यूजिक से महसूस होकर प्रोग्राम को खूब यादगार बनाया। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करने वाली इंसानी हकूक कमीशन की साबिक सरबराह आसमा जहांगीर की आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है। लाहौर से बुरहानुद्दीन रिपोर्ट करेंगे। आसमा जहांगीर 27 जनवरी 1952 को लाहौर में पैदा हुई। उन्होंने पाकिस्तान में औरतों और अक़लियतों के हकूक के लिए काम किया। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर भी रहीं। आसमा जहांगीर ने हमेशा जमहूरियत की बहाली के लिए काम किया और इदारों की सियासी मुदाखलत पर तनकीद की। उन्होंने निज़ाम अदल में बेहतरी और जजिस की शफाफ तैनातियों पर जोर देने के साथ अदलिया बहाली तहरीक में भी फ़ाल किरदार अदा किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए बतौर नुमाइंदा खुसूसी ईरान में इंसानी हकूक और मजहबी आज़ादी की हैसियत से भी काम किया। मुल्क के लिए खिदमात के सिले में इन्हें लक्स वुमेन ऑफ सबस्टांस अवार्ड, लक्स स्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया। आसमा जहांगीर को 1995 में इंसानी हकूक पर काम करने की वजह से रामोन मगसेसी अवार्ड से भी नवाजा गया। उर्दन के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर की 2018 की 562 तरीन मुस्लिम शख्सियात में आसमा जहांगीर को सर फहरिस्त करार दिया गया। 11 फरवरी 2018 को लाहौर में दिल के दौरे के बाइस वो खालिक हकीकी से जा मिली। बुरहानुद्दीन, 92 न्यूज़, लाहौर।
दुबई में सजा पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड का मेला, जिसमें सीनियर फनकारों मुस्तफ़ा कुरैशी, गुलाम मोहिउद्दीन, अताउल्लाह ईसा खिलवी और फिल्म स्टार रीमा समेत दीगर फनकारों को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पहला पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड शो दुबई में इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी फनकारों ने शिरकत करके शो को 4 चांद लगा दिए। अपनी नौइयत के मुनफरद अवार्ड शो में यह पहला मौका था कि फिल्म इंडस्ट्री के जूनियर सीनियर फनकार एक साथ दिखाई दिए। फनकारों ने इस अवार्ड शो को फिल्म इंडस्ट्री में ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। अवार्ड शो में फनकारों ने रेड कारपेट पर खूब जलवे बखेरे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और सेनेटर फैसल जवेद ने रेड कारपेट एंट्री की। अवार्ड में माजी की लाजवाब फिल्मों में अहम किरदार अदा करने वाले अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी, गुलाम मोहिउद्दीन, संगीता, रीमा और गुलकार अताउल्लाह ईसा खिलवी की कारकर्दगी को सराहते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। पाकिस्तानी ड्रामों के सुपरस्टार हुमायूं सईद को मुत्तहिदा अरब अमारात की नामवर शख्सियत हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अबू अब्दुल्ला के हाथों बेस्ट एक्टर और डायरेक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। इस तरह के अवार्ड शो के इनकास से उम्मीद की जा सकती है कि अब पाकिस्तानी शोबिज़ की इंडस्ट्री आलमी सतह पर मुकाबले के लिए तैयार हो रही है, जिससे पाकिस्तानी फिल्मी सनत को बेहद फायदा पहुंचेगा। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।